Yes. So, see, what do you mean by the linked list, guys? So, linked list is nothing but which we call it as a combination of a nodes. Okay. So, what do you mean by node? So, this is nothing but the node which you are seeing it on the screen. But what do you mean by node now? So node is nothing but the combination of the data and the another is address, जिसको हम लोग कहते हैं information. So data is nothing but the one is the info and the another is the address. Now, so the combination of the nodes is nothing but the linked list. So which you can see it on the screen that this is known as a singly linked list. That means the very first block which will be allocated with the only numeric part. Okay, and the second part है addresses which will be always it in the alphabetical format, and keep it in mind guys that it will be starting it from the A, B, C, D and so on. That means the addresses will be in the stable format. It won't be having any sort of a changes in the addresses, but yes it will be having a lot of changes in the data. ठीक है. सो अभी यहाँ पर क्या करना है. सो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट जनरेट द 5 नोड्स और 7 नोड्स और 8 नोड्स, मैक्स टू मैक्स 8 नोड्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. सो हाउ मेनी नोड्स आर ओवर हियर? सो हियर देयर आर 4 नोड्स आर देयर. सो जिसमें से जो सबसे पहला वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट. ठीक है. बट हियर इट इज नॉट बीन स्पेसिफाइड एज द स्टार्ट नोड. Okay, so with the help of the start then we'll be connecting with the further nodes over here. So अभी वो connect कैसे करना है I'll show you. So one important thing is कि according to this ये link list को देखना है and according to that I'll be generating the representation of link list in memory, which you can see it in the textbook page number 47 पे दिया हुआ है. So guys just do one modification in your textbook. जो page number 47 पे figure 2.9 दिख रहा है सबको? Everyone? हाँ, तो वो वैसा वाला डायग्राम गलती से भी नहीं बनाना है. जस्ट कीप मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग. गेटिंग इट? सो कैसे बनाना है? तो पहले देखो जैसे अभी जो मेरे स्क्रीन पे दिखाया हुआ है. सो ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है मैम पेज 47 वाला नहीं बनाना है. 47 का बॉटम वाला बेटा. ओके ओके. या ये नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये सब कोडिंग बिडिंग है, ये सब तुम लोग को याद नहीं रखना है. सो डोंट वरी. ओके. सो ये जो दिख रहा है टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन. सो ये स्क्रीन पे सबसे पहले देखो स्टार्ट है. So keep it in mind, start is not a node. Just make a note in your notebook. ठीक है. Start is not a node. तो that means अगर 5 नोड्स बोले तो excluding start 5 नोड्स. तो अभी स्क्रीन पे कितने नोड्स दिख रहे हैं तुम लोग को? 6. करेक्ट. सो जो लास्ट में जो नल है ना तो वहां पर x लिखना है हम लोग को. ठीक है. अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है देखो x, बाकी सब एज इट इज वैसे ही है, टेक्स्ट बुक का ही फॉर्मेट है. हाँ हाँ, और ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर में दिया हुआ है इसके लिए. एंड जो राउंडेड फॉर्मेट है सो दैट इज नथिंग बट द एड्रेसेस. यस दिव्यांशु करेक्ट. यस लोकेश देती हूँ ब्रेक. जस्ट कंप्लीट करती हूँ ये लिंक लिस्ट का टॉपिक, फिर तुम लोग को ब्रेक देती हूँ 5 मिनट का. Yeah, so then later on abhi yahan par ye jo link list hai, so once again I'm repeating the concept guys. What do you mean by the link list? So link list is nothing but the combination of the nodes are there. And what do you mean by the node? So node is nothing but the combination of the info and the other is the address. So info is nothing but the data which will be always in the numerical format, and the data which will be always it in the alphabetical format, which will be starting it with the A. Okay. And start करके भी एक concept होता है. So start is not a node. So start मतलब कोई भी नंबर से हम लोग को स्टार्ट करना है. सो जस्ट कीप इट इन माइंड अनदर नोट दैट स्टार्ट विल नेवर स्टार्ट विथ 1. ये एक चीज याद रखो. ठीक है. सो ये 1 से स्टार्ट नहीं करना है एंड रैंडम नंबर से स्टार्टिंग होना चाहिए. तो मतलब 5 ले लो. अभी 6 है ना नोट्स, तो 6 नंबर तक ही नंबर्स मुझे यूज करने हैं. सो सबसे पहले जो स्टार्ट है वहां पर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर 5, फिर ये केस में यूज करेंगे 1, फिर इधर यूज करेंगे 3, देन ईयर 2 एंड देन 5 एंड 6 एंड बचा क्या था 4. बस हो गया, दैट्स इट.
और लास्ट में तो नल हो गया, सो दैट मीन्स यहाँ पर स्टॉप करना है। सो इसके लिए ये 1 मार्क दिया जाता है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ओके, और जो 2 मार्क्स दिया जाता है, सो दैट इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन। सो अभी पहली बात ये जो है, ये मेरा नोड का वैल्यूज एंटर किया हुआ है लिंक लिस्ट में। सो जैसे देखो 15, 30, 6, 7, 4, अभी ये नोड्स के नंबर दिए हुए हैं, दैट इज द वैल्यूज। बट ऐसे वैल्यूज हम लोग नहीं लेंगे गाइस, कीप इट इन माइंड। कैसे वैल्यूज लेना है? सो ऑन द स्क्रीन यू आर एबल टू सी इट 5 नोड्स। सो 5 ही नंबर्स यूज करने हैं, वो भी 1 to 5, जीरो भी यूज नहीं करना है। ठीक है। एक्चुअली द थिंग इज ना, ये बोर्ड पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आया रहता, बट अभी क्या करें, ये ऐसे स्क्रीन पे आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू, बट स्टिल आई एम ट्राइंग फ्रॉम माय साइड बेस्ट। या नेक्स्ट थिंग इज, इसको डिनोट कैसे करना है अभी। ये जो डिनोशन है, जैसे अभी जो तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, यस, सो जो ये सबसे, ये भी सिंगल लिंक लिस्ट दिखाया हुआ है, सो जस्ट इग्नोर द सिंगल टर्म। ओके, सिर्फ लिंक लिस्ट है, हम लोग को सिंगल वगैरह कुछ सिलेबस में नहीं है, मल्टीपल एंड ऑल। सो ये जो एड्रेस है, ये किसको डिनोट करेगा? फर्दर वाले नोड को। फिर ये जो है फर्दर वाले नोड को डिनोट करेगा, एंड सो ऑन इट विल बी एड्रेसिंग इट टिल द लास्ट। सो जो इसका वैल्यू है वो आगे जाएगा। सो इफ यू ऑब्जर्व इट इन द, आई गेस टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा गाइज ये तुम लोग को। सो ये कहाँ पर मिलने वाला है तुम लोग को? यू विल बी गेटिंग इट इन द टीपीएस। ये आपको टीपीएस में देखने के लिए मिलेगा। सो स्किल देखो, डेटा नेक्स्ट करके लिखा हुआ है, मतलब नेक्स्ट नोड को ये रेफरेंस करता है। आई एम जस्ट चेकिंग इट विद परफेक्ट डायग्राम आई एम गेटिंग इट और नॉट। यस, देखो ये ऐसे फॉर्मेट में भी जो है डायग्राम दिखाया हुआ है स्क्रीन पे। कहाँ गया? नहीं, ये नहीं। Okay, so the next topic is, what do you mean by trees now? So trees is, as the textual definition is, it's the hierarchical structure of the collected data items. Okay, so which is not it in the non-linear structure. So non-linear matlab, as you are seeing it on the screen, that which is not it in the linear ordered format, sequential order format में नहीं रहता है। जो भी मेरे content है, that is in the random order format. So first let me clear you one thing, जैसे अभी ये structure देख रहे हो तुम आप screen पे, ठीक है? So this is also nothing but which is known as a tree only. So tree is exactly what? So tree is nothing but it is also a combination of a nodes. Okay, so जैसे, so जैसे अभी ट्री, इसमें ट्री इज अ combination of a nodes. ठीक है? सो जैसे अभी हम लोग ने लिंक लिस्ट किया, सो व्हाट डू यू मीन बाय लिंक लिस्ट? सो लिंक लिस्ट इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नोड्स, बट व्हाट डू यू मीन बाय नोड्स ओवर देयर? तो वहां पर नोड मतलब क्या था? दैट इज, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन इज इन्फो एंड अनदर इज एड्रेस, राइट? जिसको हम लोग डेटा एंड एड्रेस बोलते हैं। सो एड्रेस जो वो लिंकअप करता था नेक्स्ट वाले नोड को। बट यहाँ पर जो नोड है, तो ये नोड कौन सा है? तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, दिस इज द सर्कुलर फॉर्मेट, 1 है तो ये क्या है? 1 एक नोड हो गया, 3 एक नोड हो गया,
टू एक नोड हो गया, फोर एक नोड हो गया, एंड सो ऑन. So this is nothing but the nodes. Okay, so what do you mean by tree? So tree is also nothing but a combination of a nodes, which is nothing but the non-linear hierarchical data. So अब इसको hierarchical data क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये hereditary format में है. So अभी hereditary means what? So some of the characteristics of the hierarchy is getting carry forwarded. Hierarchy in the sense means what? Like जो सबसे पहला वाला भी ये देख रहे हो आप नोड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विल बी कॉलिंग इट एज अ रूट. ओके, इसको हम लोग रूट बोलते हैं. देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है. सो दैट इज अ वेरी टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री. ठीक है, फिर सबसे उल्ट क्या हुआ बेटा? रूट या अभी इसमें ट्री में और एक सेग्रीगेशन होगा. दैट इज दिस नेक्स्ट थिंग इज, जैसे अभी ये जो ट्री जो है यहाँ से डाइवर्जन सेंटर से कर लो, तो जो लेफ्ट साइड में आता है मेरे ट्री के, उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ट्री. ओके, और जो राइट साइड में आता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट ट्री. यू कैन एक्सेस इट ऑन द पेज नंबर 50. ठीक है, तो मतलब अभी ए के साइड में मैं जैसे वन, क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? आ रही है मैम, अच्छे से आ रही है। आ रही है मैम, मस्त मैम पहले से ही आ रही है। स्मूथ है. ठीक है ठीक है. सो जैसे अभी वन के साइड में जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ट्री, और जो वन के राइट साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं राइट ट्री. सो जस्ट मेक अ नोट इन योर नोटबुक. सो ये सारे डेफिनेशंस जो है जो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है पेज नंबर 49 पे, तो ये सारे डेफिनेशंस 1 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्री? सो ट्री इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नोड्स. फिर ट्री में भी जो लेफ्ट में आता है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ट्री, राइट में आता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट ट्री. ठीक है, मैम टेक्स्ट बुक में लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड दिया है. क्या बेटा? टेक्स्ट बुक में लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड करके दिया है. हाँ तो बराबर है ना, राइट ट्री लेफ्ट ट्री. सेम है. हाँ सेम है. अच्छा अच्छा. ओके, अभी नेक्स्ट थिंग, इसमें समझने के लिए ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है आपको. आई विल बी जस्ट सिंपली सेइंग यू, लाइक जैसे अभी देखो, वन सेकंड, जस्ट ओपन द अनदर डायग्राम फॉर यू. Perfect, I got it. Yeah, so over here, अरे यार ये तो वीडियो ही निकला. Hello everyone. In this lesson, 2 and 3 will be called children, like parent of parents, to make sure you understand things. Yeah, so are you able to see the screen properly? कुछ डाउट है किसी को? यस मैम. ओके, तो जो देखो Yes, जब ma'am. सबसे फाइन, सो सबसे पहला वाला जो वन है दैट इज नोन एज अ रूट. ओके, तो जो राइट साइड में दिया हुआ है ना, इसके 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशंस आर बीइंग आस्क्ड. सो व्हाट डू यू मीन बाय रूट? तो जो टॉप मोस्ट नोड है मेरे ट्री में उसको हम लोग रूट बोलते हैं. अभी जो वन के लेफ्ट में, हमेशा देखो मैक्सिमम ना बाइनरी ट्रीज को बोलते हैं. अभी बाइनरी क्यों कहा जाता है गाइस? क्योंकि बाय मतलब टू, राइट? तो मतलब ओनली टू डाइवर्जेंस आर देयर. सो एक तो लेफ्ट में और एक राइट में. जैसे टू एक लेफ्ट में गया, एक थ्री राइट में गया. सो सेंटर से एक एरो नहीं निकलेगा. गेटिंग इट? ऐसे सेंटर से भी एरोज वाला एक स्ट्रक्चर है, वो भी ट्री में आता है, बट दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. ऑलराइट, सो हम लोग को सिलेबस में बाइनरी ट्री है. फाइन, टर्नरी वगैरह नहीं है ऐसे कुछ. सो बाइनरी ट्री में जो टू है एंड थ्री, सो जो लेफ्ट साइड में है, एज यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, दिस इज नोट एज अ लेफ्ट ट्री. जो राइट में, इसको हम लोग बोलते हैं राइट ट्री. नाउ गाइज, अभी ये वन से टू और थ्री इमर्ज हो गया. फाइन, अभी टू से ये 4 5 6 आया और थ्री से 7 8 आया. मतलब टू और थ्री क्या हो गया मेरा? ये पेरेंट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट नोड. तो ये पेरेंट से इनके चाइल्ड हो गए ये, तो ये चाइल्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड नोड. गेटिंग इट? सो एक जो नोड है जिसका नाम एक है चाइल्ड है, एक है पेरेंट है, तो मतलब सबसे पहला वाला जो स्टार्टिंग है उसको हम लोग रूट बोलते हैं. फिर नेक्स्ट है पेरेंट. पेरेंट से भी जो मेरे ब्रांचेस, जितने ब्रांचेस हो रहे हैं वो मेरे चाइल्ड है. ठीक है, फिर अभी फोर को कुछ है क्या? फोर के चाइल्ड है क्या? मतलब फोर के ब्रांचिंग हो रहे हैं क्या? नहीं. नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीफ. मतलब द नोड विच इज नॉट हैविंग एनी चाइल्ड. देखो राइट साइड में इट हैज बीइंग स्पेसिफाइड,
कर्सर मेरा देखो मूव कर रही हूँ मैं. So that is known as a leaf. So leaf means the one who is not having any child is known as a leaf. Okay. फिर 5 के है मेरे ब्रांचेस, so मतलब 5 के चाइल्ड है 9 एंड 10, 6 का भी नहीं है, so 6 is also a leaf. Getting it? अभी 2 का 4 5 6 3 चाइल्ड्स है 2 के, तो मतलब 4 5 6 एक दूसरे के क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, so that is of the same parent. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अभी ये 1 और 4 का क्या रिलेशन है, मतलब ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हो गया ना, लाइक एंसेस्टर हो गया. गेटिंग इट? सो 1 इज द एंसेस्टर ऑफ द 4. तो 1 4 का या 1 5 का या फिर 1 6 का या फिर 1 7 का या फिर 1 8 का रिलेशन देखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंसेस्टर कहते हैं. गेटिंग इट? एंड 1 4 को और 1 9 को दोनों को एंसिस्टर बोलेंगे ना? 1 9 को भी, यस यस एग्जैक्टली बेटा, वो भी एंसेस्टर ही हो गया. हाँ हाँ ठीक, मतलब लग बोलते हैं गया। ना हम लोग, दादा पर दादा एंड ऑल वॉल, लाइक दैट. सेम थिंग अभी ए इज द एंसेस्टर ऑफ बी, बट अगर वाइस वर्सा देखा जाए तो बी इज द डिसेंडेंट ऑफ ए. So ancestor and descendant, so this both the things are also there in our syllabus. So कोमल, यस आपको प्रेजेंट कर दिया है मैंने, ठीक है, नॉट एन इशू. सो यस, वंस अगेन बैक टू द टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय रूट. सो रूट जो है वो मेरा टॉप में होता है, फिर जिनके ब्रांचिंग हो गए, तो जो ब्रांचेस हो गए दैट इज टॉपमोस्ट वाला, उसको पेरेंट कहते हैं. जिनके चाइल्ड्स है दैट इज नोन एज अ चाइल्ड. जिनको चाइल्ड नहीं है उनको लीफ कहा जाता है. फिर एक पेरेंट के अगर 2 3 चाइल्ड है तो वो एक दूसरे के क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए. एंड देन जो सबसे फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन है तो उसको एंसेस्टर कहा जाता है. एंड वाइस वर्सा इट इज नोन एज अ डिसेंडेंट. सो ये सबका डेफिनेशन आपको पेज नंबर 49 पे it's given in your textbook. So I hope you are clear with all the. डिसेंडेंट क्या होता है? Descendant मतलब देखो ना, अभी मैं what we say that मैं अभी रूट 1 हूँ, ठीक है, अभी मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे, so I became the ancestor of the third generation. And third generation वाले हैं, they become the descendant of me, that is a first generation. गेटिंग इट? तो हम लोग बोलते हैं ना मेरे दादाजी है तो दैट इज नथिंग बट द एंसेस्टर. तो तुम लोग कौन हो, तो तुम लोग दैट इज नोन एज अ डिसेंडेंट. गेटिंग इट? So that is known as a vice versa. So as you can see it on the screen also, A is the ancestor of B and B is the descendant of A, vice versa. So matlab 1 is the ancestor of 4 or 9 and 4 and 9 is the descendant of a 1, या फिर 8 and 11 is the descendant of a 1. Cool? समझा? यस यस। Okay, so I hope everyone is clear with the terms root, child, parent, leaf, siblings, ancestor, descendant. And it is left subtree, right subtree. ये 9 terms clear हो गए? किसी को कुछ doubt है? Anyone? नो, Okay. Now अभी सिर्फ 2 term बाकी है. That what do you mean by a level and what do you mean by a degree? So what do you mean by a level? So जो अभी screen पे आप देख रहे हो, ठीक है, सो लेवल ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ जीरो, कीप इट इन माइंड. ठीक है, तो जो अभी टेक्स्ट बुक स्क्रीन पे जो डायग्राम देख रहे हो आप, सो दैट इज ए जो है, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है सब ट्री, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, सिबलिंग्स, लीफ नोड. और फॉर योर रेफरेंस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. जो स्क्रीन पे है, सब लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आई कैन मूव फर्दर. डन। डन एवरीवन? मैम इसमें, हाँ. मैम इसमें एच एच क्या हो जाएगा? लीफ हो गया ना वो। यस, क्या एच एच बेटा, ये तो ई का है ना. हाँ, सो एच इज नथिंग बट द डिसेंडेंट ऑफ ए एंड ए इज द एंसेस्टर ऑफ एच. जो एच इज द चाइल्ड ऑफ ई, ई इज द पेरेंट ऑफ द एच. वन मोर थिंग, एच इज द बी इज द एंसेस्टर ऑफ एच. ये भी एक हो गया. मैम डी को लीफ, सॉरी हाँ, हाँ एच लीफ एच होना तो चाहिए ना। लीफ है, हाँ ऑब्वियसली एच लीफ भी है.
नहीं नहीं, डी डी उधर चाइल्ड हाँ। नोड दिया है, लीफ होना चाहिए ना। अरे बेटा वो उन्होंने बताया कि बी के ब्रांचिंग हो गए ना, तो चाइल्ड नोड वो एरो सिर्फ डी को किया है, दे वांट टू प्रिटेंड डी ई एफ, ये एक लेवल में दिखाया हुआ उन्होंने, समझा। अभी देखो ना जी में देखो लीफ नोड, सी किसी एक को ही उन्होंने एरो करके दिखाया, सबको दिखाया नहीं है। तो सबको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना आपको कैसा है। सो मतलब देखा जाए तो एच है, डी है, एफ है, जी है, दीज आर द लीफ नोड। मतलब द वन हु आर नॉट हैविंग अ चाइल्ड दे आर अ लीफ, गेटिंग इट। और उसका एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट टू सी इट एट द बॉटम, देखो यहाँ पर दिया हुआ नीचे, समझा। देखो डी एफ एच एक जी, मिनट मैम स्क्रीनशॉट चाहिए था। देखो ये हाईलाइटेड वाला, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू, हाँ हाँ समझा। सी बच्चे ये ऐसा ऐसे जैसे व्हाट वी से ऑनलाइन जाओ या फिर टेक्स्ट बुक में देखो, हर एक चीज का तुम लोग को स्पेसिफाई करके नहीं देते कहीं पे भी, नॉट इवन इन द रेफरेंसेस बुक्स एंड टेक्स्ट बुक। अभी ये तुम लोग बच्चे बड़े हो गए, तो हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता जैसे स्कूल में होता था, सिर्फ किसी एक को ही एरो करके ऑथर बता देता है, ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस टर्म्स। Now the next is levels. So what do you mean by levels of a node? That level मतलब जितने मेरे ब्रांचिंग हो रहे हैं, मतलब जितने मेरे एरोज जा रहे हैं। सो गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ये जब भी तुम लोग डायग्राम ड्रॉ करोगे ना टेक्स्ट बुक में, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू विल बी ड्रॉइंग द डायग्राम ऑन अ सेम लाइन, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे बी और सी है तो ये एक ही लाइन में होना चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे मिस्टेक्स करते हैं ये डायग्राम ड्रॉ करते वक्त। सेम थिंग अभी डी ई एफ और जी एक ही लाइन में होना चाहिए, तो बहुत से टाइम ऊपर नीचे होता है इसका लेवल। सो ये एक मेंटेन रखो एग्जाम में। ये एग्जाम में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आएगा ही क्वेश्चन। अभी तो आई एम वेरी श्योर, क्योंकि ये बहुत सारे एलिमिनेशन हो गए जो कि इंपॉर्टेंट भी कुछ क्वेश्चन से उसमें से एलिमिनेट किया गया है, 4-5 एल्गोरिथम। सो बचा क्या है चैप्टर में, इट्स वेरी फ्यू थिंग्स आर देयर, एंड ऑब्वियसली ट्री के ऊपर तो एवरी ईयर आता ही है, एंड दिस ईयर भी है क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग दैट दिस ईयर ट्री के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस है। So I hope you will study this tree topic very thoroughly, and it's very simple also. इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक एंड ऑल नहीं लगाना है, ठीक है। सो बी एंड सी क्या है, लेवल 1, डी एफ जी लेवल 2 एंड सो ऑन। सो लेवल स्टार्ट्स विद 0। सो ये डायग्राम का या फिर ये ट्री का कितना लेवल हो गया, सो लास्ट में आंसर लिखना है लेवल ऑफ दिस ट्री इज 0 3, समझा। जैसे पेज नंबर 50 पे लेवल 0 4 है, तो सिर्फ 4 नहीं लिखना है, 0 4 लिखना है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। जैसे एक्यूमुलेटर एंड कैरी इज इक्वल टू 0 1 लिखते हैं ना, कैरी अगर नहीं आया तो 0 0 H लिखते हैं हम लोग हार्डवेयर में, वैसे उसी प्रकार यहाँ पर लेवल 0 3 लिखना है। हाँ, वाइल स्पेसिफाइंग इट, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पर लेवल 1 ही लिखना है, लेवल 2 ही लिखना है, 3 लिखना है, नॉट 0 1 0 2 3, ओके। बट एट द एंड 0 3 करके स्पेसिफाई करना है, क्लियर। ओके अभी हाइट ऑफ द नोड ये तो नहीं है आपको। सो लास्ट इज द डिग्री ऑफ द ट्री। सो व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्री ऑफ द ट्री, तो डिग्री मतलब जिसके जितने ब्रांचिंग है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। सो अभी डिग्री ऑफ ए, तो कितना है डिग्री ऑफ ए गाइस, परफेक्ट, वेरी गुड। सो जस्ट अ सेक, आई यस, अभी यहाँ पर आंसर में लिखना है, तो मतलब डिग्री ऑफ ए कितना है, डिग्री ऑफ ए 0 2, तो ये ऐसे आंसर में लिखना है आपको, ठीक है। तो एक डिग्री एक कर कर पूछा जाता है आपको। हाँ, डिग्री ऑफ बी कितना है, 3। सो डिग्री ऑफ बी, वेरी गुड, परफेक्ट, सो इट्स अ 0 3। सो डिग्री ऑफ सी कितना है, 3। 1 ना बेटा, सी का 3 कैसे, डी का कितना, 0। ओके, ई का 1। 1, ओके। एंड नाउ अभी लास्ट में द डिग्री ऑफ डी कॉमा, साथ में लिखना है इसका, H कॉमा F कॉमा G,
is equal to 0. So this is the answer for the degree. Just highlight it and इसका एक screenshot अच्छे से ले लो. So एग्जाम में लिखते वक्त ये सब लिखना है ऐसे ही जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है नोटपैड में. So yes guys, it's up. डिग्री मतलब कितना ब्रांचिंग हुआ उस Yes, यही होता है ना. perfect. जिसके जितने ब्रांचिंग है that is known as a degree. ठीक है. अच्छा, हाँ तो सिर्फ मैम सी वाले का ब्रांच जो है वो GH11 है. हाँ तो सी का मैंने 1 लिखा है ना, बराबर है ना. एंड यस वन मोर थिंग, लेवल ऑफ द ट्री का जो डायग्राम है ना गाइज, इट्स अप टू यू. तो ये तुम्हारे हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करना है, तो तुम्हारे हिसाब से कैसे भी तुम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, क्लियर? शैल आई मूव, प्रोसीड? मैम ये डायग्राम बनाएंगे तो मतलब बाजू में सब एलिमेंट्स की डिग्री लिखनी है. परफेक्ट. जैसे ऐसे ही जैसा मैंने स्क्रीन पे लिखा है ना, ऐसे ही एज इट इज. सिर्फ लास्ट में जो 0 है ना वो सबका साथ में लिखना है, अलग अलग से लिखते मत बैठो छोटे बच्चों की तरह. ओके साथ मैम. में ही लिखना है. एंड सिर्फ लेवल एक पूछा जाता है, तो लेवल और डिग्री ये तो दो सी और हैं. ई का भी एक साथ लिखना है कि उनका अलग अलग ही लिखना है? अलग अलग लिखना है बेटा, क्योंकि सी जो है मेरा वो राइट सब ट्री में आया, ई मेरा लेफ्ट में आया. जिनको कोई मतलब हाँ. लीफ है ना, जिनके कोई ब्रांचिंग नहीं है, जिनके कोई चाइल्ड नहीं है, द वन हु इज नोन एज अ लीफ, उसको साथ में लिखना है. मतलब सिर्फ 0 अच्छा, 0 को ओके साथ में ओके. लिखना है. ठीक है, ओके. अभी कम टू द पेज नंबर 52 इन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, अभी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री दिख रहा है आपको टेक्स्ट बुक में सबको? यस मैम. उसको ओमिट कर दो खुशी खुशी, ये एग्जाम में नहीं आ रहा है. Yeah, so the next topic of this binary tree is, that is the representing binary tree is memory. So there are the two variations in this binary tree. So the first is the link representation and the another is the sequential representation. Okay, so अभी यहाँ पर linked representation में there are the three different variation guys. So जैसे अभी हम लोग ने पहले वाली tree में देखा कि that is the combination of the nodes. So as you can see it on the screen, तो जैसे ये मेरे नॉर्मल नोड्स थे ए बी सी डी, एंड इन दैट देयर इज अ वेरिएशन लाइक लेफ्ट ट्री होता है या फिर राइट सब ट्री होता है. बट इन दिस सिनेरियो यहाँ पर लिंक रिप्रेजेंटेशन, इट विल बी हैविंग द लेफ्ट, सेकंड इज राइट एंड द थर्ड इज इन्फो. मतलब एक इंफॉर्मेशन होगा, दूसरा एक लेफ्ट होगा और तीसरा एक राइट होगा. सो ऐसे 3 डिफरेंट वेरिएशंस विल बी देयर. ओके, सो I'll be showing you the syntax, how the representation of a binary tree is there. It should be there. Yes. So देखो, यस. सो एक होता है लेफ्ट ट्री, जैसे भी मैंने बोला लेफ्ट, तो इसको हम लोग लेफ्ट चाइल्ड बोलते हैं. एक राइट चाइल्ड एड्रेस. एड्रेस मतलब क्यों इसको एड्रेस स्पेसिफाई किया है? बिकॉज इट विल बी गोना पॉइंटिंग इट टू द नेक्स्ट वन. जैसे अभी हम लोग ने लिंक लिस्ट में कैसे पॉइंट किया था, सेकंड वाला नोड थर्ड को पॉइंट करता है, थर्ड वाला फोर्थ को, एंड सो ऑन. सो सेम वे ओवर हियर ऑल्सो. एंड जो सेंटर वाला है उसको हम लोग इन्फो बोलते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, एंड ओवर हियर इट इज नोन एज अ डेटा. ठीक है, सो ये ऐसे फॉर्म में स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है जैसे टेक्स्ट स्क्रीन पे दिखा है. सो सेम स्ट्रक्चर इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, सिर्फ रूट नोड लिखा है, वहां पर आर करके हम लोग स्पेसिफाई करेंगे. सो आर इज नथिंग बट द रूट. ओके, सो ए इज द रूट. ए का भी कितने ब्रांचिंग है? बी एंड सी. फिर बी से भी डी एंड एफ, सी के जी एंड एच, फिर डी के भी आई एंड जे, लेफ्ट एंड राइट हो गया. एफ में नथिंग इज देयर, जी के सिर्फ राइट है, लेफ्ट नहीं है, एच में नथिंग इज देयर. सो गाइज अभी ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द यूजर दैट हाउ दिस डायग्राम विल बी जनरेटेड और विल बी ड्रॉड. ठीक है, सो इट्स अप टू यू गाइज. तो तुम लोग को जैसे ड्रॉ करना है वैसे कर सकते हो. ओनली द थिंग इज कि जो ये यहाँ से ए से लेके सी तक है ना, या फिर एच तक, सॉरी एच तक, सो इतना कंपल्सरी है तुम लोग को ड्रॉ करना. फिर उसके आगे इट्स अप टू यू कि किसको किसको वेरिएशंस आगे देने हैं, या फिर व्हाट वी हैव टू प्रोसीड इट फर्दर और नॉट. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग करते जाओगे उसी प्रकार से इसका भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी मुझे दिखाना है.
गेटिंग इट? सो लाइक अभी यहाँ पर ए मेरा रूट है, ओके? मैम एक फालतू सा डाउट था। हाँ बेटा पूछो ना। अगर वो मतलब बी का साइड का एक और सी के साइड का एक दोनों कनेक्ट हो गए तो, या फिर वो अपने सिलेबस में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कनेक्ट होता ही नहीं है बेटा। बी का एक साइड का और सी का एक साइड का कैसे कनेक्शन हो गया? क्योंकि सी राइट ट्री है, बी लेफ्ट ट्री है। तो मतलब होता ही नहीं है? नहीं होता है बेटा। अच्छा, हाँ। ओके ओके। Oh shit. There is 1 sec. I need to